Abhishek, can I start? Yes, you can, Sanju. Good evening, everyone. Welcome to the Saksham Rozgar Society. सक्षम रोजगार सोसाइटी जैसे कि आप जानते हैं कि 1 मंथ कम्युनिकेशन एंड अकाउंट इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनिंग की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। इंग्लिश स्पीकिंग की जो हमारी जो कम्युनिकेशन जो क्लास है इस तरीके से डिज़ाइन की गई है जिससे आप कम्युनिकेशन के साथ साथ अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सके। तो ओवरऑल इसमें जो आज की जो हमारी क्लास है जैसे कि जो सक्षम रोजगार सोसाइटी ने इस ट्रेनिंग में बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड की है जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू मेक सीवी, हाउ टू फेस इंटरव्यूज। तो इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी सीरीज को आगे करते हुए आज की जो हमारी क्लास है वो है हाउ टू यूज चैट जीपीटी एंड ऑनलाइन टूल्स। तो आज की जो हमारी ऑनलाइन टूल्स जो आप क्लास लेंगे इससे आप सीखेंगे कि जो भी हमारी ऑनलाइन टूल्स है उसको कैसे यूज करना है और अपने किसी भी काम को स्मार्टली और इफेक्टिवली कैसे करना है। तो जो आज की क्लास है वो मिस्टर अभिषेक जी लेंगे। तो इनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए आई एम इनवाइटिंग फरहद फॉर इंट्रोडक्शन। फरहद, ओवर टू यू। Thank you, Sanju ji. Good evening, everyone. Uh, I'm Farhad. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce our today's resource person, Mr. Abhishek. Mr. Abhishek is an advocate practicing in Delhi High Court and various district court of Delhi. He earned his LLB degree from LC1 Faculty of Law, Delhi University, and was enrolled with the Bar Council of Delhi in 2023. Abhishek academic achievement extend beyond law as he holds BA in Political Science honors from Kirodimal College, Delhi University. However, his commitment to society goes far beyond the courtroom. Since, since 2017, Abhishek has been a dedicated volunteer at Saksham Bharati and currently serves as the office secretary of Saksham Rozgar Society. This role not only underscores his passion for community service but also highlight his exceptional administrative skill. In addition to his professional endeavors, Abhishek is deeply involved in education, providing guidance and counseling to students from grades 9 to 12. His enthusiasm for philosophy adds depth and uniqueness to his multifaceted personality. A firm believer in the transformative power of technology, Abhishek advocates for leveraging the internet and modern tools to streamline tasks, making them more efficient and now I'm going to introduce his lead person, Mrs. Shobha Bhasin. She is an entrepreneur and educator with an experience of 32 years in the field of education. She worked in various public schools in Delhi before she joined Rayan International School as a biology teacher, from where she took her BRS. During her tenure, she was awarded for her good performance a number of times. She also assisted in Atal Tinkering Lab, which is a mission set up by Niti Aayog for transforming the innovation and entrepreneurship ecosystem uh, ecosystem in the country. She is trained classical dancer Odissi and had been a sportsperson with many awarded under her belt. She is also an avid sitar player. She has been an integral part of Saksham Bharati right since its inception. Thank you so much. Now, please, Abhishek. Over to you, Abhishek. So thank you, Farhad, and thank you, Sanju, for the introductions. और थैंक यू सक्षम भारत रोजगार सोसाइटी को कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज की आपकी एक क्लास ऑनलाइन टूल्स की और चैट जीपीटी की ले पाऊँ। सो हम बात करते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन टूल्स की। और जैसा कि आजकल आप जानते हैं टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। एक सेकेंड।
जैसा आप जानते हैं टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है, और जब से ये 4G का समय शुरू हुआ है, आप तो आजकल 5G यूज़ कर पा रहे हैं कई लोग। 4G जो 2016 में आता है जियो के रेवोल्यूशन के आगे बाद, तो उससे काफ़ी जो हमारा इंटरनेट है सस्ता हुआ, और काफ़ी लोगों को नेट एक्सेसिबल हुआ, और काफ़ी लोगों के हाथ में फ़ोन भी आया। और वो फ़ोन का जो आपके आस-पास डिवाइस ऐसे स्मार्टफ़ोन कहते हैं, जिससे आप कई सारे काम कर सकते हैं आज। आपको कहीं फॉर्म भरना हो या कोई क्लास अटेंड करनी हो, ये सारे काम आपके फ़ोन से हो जा रहे हैं। इवन लोगों ने एग्ज़ाम तक दिए हैं इसके हेल्प से। सो काम क्यों नहीं? काम भी आपके फ़ोन से हो सकता है, और काम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन आप कितनी स्मार्टली उस काम को कर पाते हैं, ये क्लास उसके बारे में है। और ये क्लास इस बारे में नहीं है कि आपको ये ऑनलाइन टूल्स कैसे यूज़ करना है, आपको स्मार्ट कैसे बनना है, आप स्मार्टली कैसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपने टास्क को परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ये क्लास उसके बारे में है। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आई थिंक सभी को स्क्रीन मेरी विज़िबल होगी। आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस Yes, Abhishek. Yes, Abhishek, हम थैंक देख यू। रहे हैं। अब हम सीधे बात करेंगे कि क्या-क्या हम इस क्लास में सीखने वाले, देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने जीमेल अभी हटा दिया है। जीमेल मैंने पढ़ डाला हुआ है पीपीटी में। जीमेल की क्लास आपकी श्वेता मैम ने पहले ही ले चुकी हैं, सो मैं इस पे बात नहीं करूँगा। हम बात करेंगे गूगल ट्रांसलेट का कैसे यूज़ करना है। आप सभी के फ़ोन में ये सॉफ्टवेयर होता है, कई लोग यूज़ करना जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। हम बात करेंगे चैट जीपीटी की, और जेमिनी जैसा कि गूगल का टूल आजकल एआई ये भी काफ़ी पॉपुलर हो रखा है, ये भी आ रखा है। तो दोनों एक से हैं, आप जिस पे प्रेफ़र करें, जिसका यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, और ये आपके ऊपर आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। आगे स्पिन बोट है, ये थोड़ा पढ़ने वाले लोगों के लिए है, जो आप ग्रामर चेक करने आते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपने कुछ आर्टिकल लिखे हैं, उसे रिफ्रेश किया जाए, आप एक तरीके से प्लेगरिज्म से बचना चाहते हैं। बाकी मैं कुछ आगे यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूँगा इंग्लिश सीखने के लिए, अगर आपको अपना इंग्लिश थोड़ा बूस्ट करना है या उस पे आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो। बाकी थोड़ा पीडीएफ टूल्स की भी हम बात करेंगे कि किस तरह से आप, जो पीडीएफ का ज़माना काफ़ी हो चुका है, आप पीडीएफ से काफ़ी पढ़ते हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, तो पीडीएफ को कैसे यूज़ करना है उसका भी हम बात करेंगे। और कुछ बोनस बोनस टिप्स भी मैं शेयर करूँगा आप सभी के साथ। सो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल ट्रांसलेट का ये इंटरफ़ेस ऐसा होता है, आपके फ़ोन में भी ऐसे ही कुछ आएगा। ये तो मैंने लैपटॉप पे भी ओपन कर रखा है। एंड देन स्पिन बोर्ड, मैं सभी का आप सबको पीपीटी दिखा रहा हूँ, आगे मैं सीधे आपको प्रैक्टिकल कराऊँगा क्या-क्या करने वाले हैं हम क्लास में। ये इस तरह से इसका कुछ आता है इंटरफ़ेस, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है जो भी आप चाहते हैं इसको रीराइट करवाना, ये आपको रीराइट करके देगा यहाँ पे। एंड देन कुछ पीडीएफ्स की बात करेंगे आगे, कि पीडीएफ की यूज़ करने के लिए कौन से वेबसाइट्स हैं, जैसा कि ये आई लव पीडीएफ मैं जो बहुत यूज़ करता हूँ, जो कि फ्री है काफ़ी हद तक यूज़ करने के लिए आप सभी के लिए। तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम उस पे बात करेंगे। सो डायरेक्टली मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हमें यूज़ करना है इन टूल्स का। ये गूगल ट्रांसलेट है, आप सभी देख पा रहे हैं। सभी को दिख रहा है गूगल ट्रांसलेट? Yes, sir. Yes, sir. यस ओके, सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो मैं बस एक सिंपल सा ऐसे इंग्लिश का फ्रेज़ दूँगा। मान लो ये रहा, मैंने पहले सेलेक्ट करके रखा है, ये न्यूज़ आर्टिकल है जो द हिंदू की तरफ से मेरे ईमेल पे आता है। छोटा-सा लाइन है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और इसका लगभग ये काफ़ी हद तक सही से आपको हिंदी में करके दे देगा, या आपको इंग्लिश से हिंदी करना है वैसा कर सकते हैं। पर ये सिखाना मेरा मेन मकसद नहीं था आपको। मेरा मेन पॉइंट था कि आपको बताना कि आप हिंदी भी टाइप कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए। जैसे बहुत जल्दी आप टाइप कर सकते हैं, आपको बस जैसे आप अपने व्हाट्सएप पे लिखते हैं, बात करते हैं दोस्तों से हिंदी में, इंग्लिश का यूज़ करते हुए, वैसे ही लिखना है। जैसे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या आप मुझे जानते हैं? और देखिए कितनी जल्दी इसने लिख भी दिया ऐसे ही। तो आप इसका इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं। सो ये था गूगल ट्रांसलेट, और आप चाहे तो छोटे-मोटे डॉक्यूमेंट इसको दे सकते हैं अपलोड करके, उसको भी ट्रांसलेट करके आपको दे देगा। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग बोट की। अभी जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था इंग्लिश में, अब मैं दोबारा यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ उसको। ये स्पिन बोट की वेबसाइट है, आप सभी को दिख रही होगी। मैं ज़ूम कर देता हूँ सभी के लिए। ये इस तरह से दिखता है, ठीक है?
आपको बस यहाँ पे इसको यहाँ पेस्ट करना है और बेसिक स्पिन पे क्लिक कर देंगे आप, वो इसको रीराइट करके दे देगा। या थोड़ा और एडवांस जाने आते हैं, इसके बाद पैराफ्रेजिंग का टूल यहाँ पे है, जैसा आप ऊपर देख रहे हैं इस जहाँ पे, ये पैराफ्रेजिंग का टूल है। सो यहाँ पे पेस्ट करिए आप इसको, कोई सा भी टेक्स्ट, और पैराफ्रेज पे क्लिक कीजिए। ये सेम उसी चीज को अलग तरीके से लिख के दे देगा। सो ये तो हो गया कुछ शॉर्टकट्स कि आपको कहीं आर्टिकल सबमिट करना है या स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करेंगे कि हम अपनी जो क्या बोलते हैं लर्निंग को या अपनी वर्क को बूस्ट कैसे करें चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए, उस पे आएंगे। सो चैट जीपीटी जो कि ये प्रोडक्ट है ओपन एआई का, आपको चैट जीपीटी यूज करने के लिए सिंपली या तो आप प्ले स्टोर से भी आके ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या आप सिंपली आपको लिखना है वेबसाइट पे आके ओपन एआई, और पहले इस लिंक पे क्लिक कीजिए ओपन एआई के, एंड देन आपको ये पहले खोल के दे दिया आज चैट जीपीटी एनीथिंग। एक सेकेंड, इन्होंने चेंज कर दिया, मैं चैट जीपीटी लिख दे रहा हूँ सीधे नीचे से। सर होता क्या है? हाँ जी, हाँ जी, होता क्या है? मैं बता रहा हूँ इस करना कैसे करते हैं, इसका क्या होता है। सो आप सभी में से कितने लोग जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में? पहले आप अपने हैंड रेस कीजिए, मैं देख पाऊंगा यहाँ से कितनों को पता है चैट जीपीटी क्या होता है। ओके ओके, 5 लोग, 6 लोग, 9 लोग, चलो ठीक है, मैं मान के चलता हूँ 10 लोग को पता है चैट जीपीटी क्या होता है। चैट जीपीटी एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका फुल फॉर्म है, जो कि एक मैकेनिकल एक प्रोग्रामिंग है अपने आप में। आपसे कुछ सर्टेन कमांड्स देते हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स यानी कि कमांड जो आप देते हैं वो चैट जीपीटी आपको करके देता है। तो मैंने कुछ प्रॉम्प्ट आप सभी के लिए बना रखे हैं प्रैक्टिस कराने के लिए, सो हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, ये सामने आपके ऐसे खुल जाएगा साइट, ठीक है, चैट जीपीटी का। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ करके इसके ऊपर। मैंने आपके लिए कमांड बना रखी है पहले से ही। मान लो कोई वॉलंटियर करना चाहेगा, एनीवन, एनीवन? एक सेकेंड, अनिकेत कुमार, आप अपना आपको अनम्यूट करें। अनिकेत, Yes, sir. Yes. आपने दिन भर में जो भी काम किया, आप अंग्रेजी में जो भी आप टूटी फूटी भाषा में बोल सकते हैं, बोलिए उसको आप, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगा इसको। So, sir, I have to tell about the things which has been done today. हाँ, यस यस। Okay. So, when in the morning, I wake up at 5 a.m. and then I went to my English classes and then I went to my college and then I took classes and after that I gave presentation on research paper and एक after सेकेंड आराम that से बोलिए। वेंट टू क्लासेस, yes sir. मैं सिंपली छोटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, Okay sir. एंड गिव प्रेजेंटेशन, ठीक है। बस बस अनिकेत हो गया आपका, थैंक यू। बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है Thank you. नॉर्मली, ठीक है। ये अपने आप में कोई खास अच्छा फ्रेज तो नहीं है किसी को लिखने के लिए बताने के लिए, ठीक है। सो मैं इसके आगे एक कमांड दे रहा हूँ, आप सभी को जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। आप सभी को दिख रहा है अच्छे से? Yes, sir. Yes sir. बस मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, क्या क्या लिखा है मैंने? Check grammar. ऑफ दिस टेक्स्ट, ठीक है। Okay, sir. और मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब इसका ये ग्रामेटिकली करेक्ट करके देगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था मैंने नॉर्मली, द मॉर्निंग ऐसे लिख दिया मैंने, द मॉर्निंग आई वेक अप एट 5 AM एंड देन वेंट टू इंग्लिश क्लासेस एंड गिव प्रेजेंटेशन।
अब इसने क्या लिख के दिया, इन द मॉर्निंग आई वोक अप एट 5 AM देन वेंट टू इंग्लिश क्लासेस एंड गिव अ प्रेजेंटेशन। ठीक है ना ये? एंड देन मैं एक कमांड और दे रहा हूँ उसको, यस अगर आप चाहते हो इसी चीज को। हाँ जी, मान लो चाहते हो उसको थोड़ा सा और अच्छा बना के दिखाना चाहते हो, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ब्यूटीफाई इट। ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के उसको दिखा देगा इसी सेम टेस्ट को। अब उसने क्या लिखा, दिस मॉर्निंग आई स्टार्टेड माई डे एट 5 AM, अटेंडेड माई इंग्लिश क्लास एंड डिलीवर्ड अ प्रेजेंटेशन। थोड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में आप सभी को कि नहीं पहले से? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इसको आप ऐसे अच्छा कर सकते हैं, या मान लो इसी चीज को आप थोड़ा किसी प्रोफेशनली साउंड में कहना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसे, मेक इट साउंड लाइक प्रोफेशनल। अब थोड़ा सा प्रोफेशनल टोनिंग में ही आ गया, ठीक है, आप सभी के सामने। आप कैजुअली हर चीज नहीं बोल सकते किसी को ना, तो ये प्रोफेशनली जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, कई बार किसी को कोई बात कहनी हो, किसी से बात करनी हो, तो उसके लिए है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या प्रॉम्प्ट है। मान लो आपको एक आप सभी ने इंग्लिश क्लासेस ली, ठीक है, आप चाहते हो आगे और फर्दर इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं इसको एक कमांड और दे रहा हूँ। आप सभी देख पा रहे हैं मैं कमांड क्या देने जा रहा हूँ इसको, पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एनीवन वुड लाइक टू रीड? यस सर। हाँ बोलिए। मेक अ 30 days plan for improving an English elementary, intermediate, upper intermediate, advanced level. ये आप सभी को पता है लेवल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट, एडवांस? मैं बताऊंगा आप सभी को लास्ट में, बोनस टिप्स है, ठीक है, आपको एक टेस्ट देना है एक ऐप के थ्रू, वो आपको आपका लेवल बता देगा अच्छे से, ठीक है। तो Okay, मैं sir. बस अभी मैं इंटरमीडिएट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेगा 30 days प्लान फॉर इम्प्रूविंग इंग्लिश फॉर अ इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट, ठीक है। अब ये आप सभी के सामने क्या कर रहा है, आपका प्लान बना रहा है, क्या क्या आपको काम करना है, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर पे, या आपका टाइम कैसा होगा, कैसे टाइम देना है आपको, ठीक है, किन किन चीजों पे। आप सभी को दिख रहा है सभी अच्छे से? Yes, sir. Yes, यस sir. कैसा लगा आपको, अच्छा लगा कि नहीं जान के? बिल्कुल Yes, अच्छा लग रहा है। Yes, sir. ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। या मान लो जैसे इसमें से मैं कोई चूज करता हूँ, मान लो मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, इसी सेम कमांड को मैं दोहरा देता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। मेगा 30 days प्लान फॉर इम्प्रूविंग हेलो। इंग्लिश राइटिंग स्किल। अभी आपकी राइटिंग स्किल को बूस्ट करने के लिए बताएगा क्या आप कर सकते हो, ठीक है। And the music from the notice of the was from the nearby कौन है ये? Shiv temple. अब दोबारा नहीं आएंगे। मैं मीटिंग को लॉक कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएगा, कोई मीटिंग लेफ्ट नहीं करेगा इस बीच में, ठीक है। सो इसने आपका एक राइटिंग का प्रोग्राम भी बना दिया है, ठीक है, आप कैसे अपने राइटिंग बूस्ट कर सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, क्या क्या काम करना है, वोकैबुलरी बिल्डिंग करनी है, सेंटेंस क्राफ्ट करना है आपको, पैराग्राफ राइट करने हैं। आप लिख सकते हो कि सजेस्ट में, मैं एक कमांड दे रहा हूँ, सम सोर्सेस। ये आपको सोर्सेज भी देगा कहाँ कहाँ से आप यूज कर सकते हो उन चीजों का, ठीक है। यहाँ देखो लिंक भी आ रहे हैं वेबसाइट वगैरह के, अगर आप देख पा रहे हैं तो सही से। ये सभी चीजें मैं आपको दे दूंगा, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जाके इस पे।
और कोई अभी लिखेगा नहीं, सबका ध्यान बस स्क्रीन पे होना चाहिए, स्क्रीन पे चल के आ रहा है आपके सामने। ठीक, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या प्रॉम्प्ट है। मान लो मुझे एक क्विज बनाना है, ठीक है, मुझे थोड़ा टेस्ट करना है अपने आप को कि मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ। इसको यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट कमांड है मेक अ क्विज ऑन पास्ट टेंस। ठीक है, इंग्लिश के पास्ट टेंस पे अपनी ग्रामर को मैं करने के लिए एक क्विज बनवा रहा हूँ उससे। ठीक है, तो ये अब कुछ क्विजेस बना रहा है। ठीक है, अलग तरीके से। और मैं इसके आगे आपको एक एडिशनल और चीज दिखाता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लो आपने कुछ आंसर लिखे हैं, ठीक है, जो भी आपके होंगे फिल करके, आपको बस एक कमांड देनी है उसके आगे कि दीज आर माई आंसर्स। ठीक है, प्लीज सजेस्ट इन विच एरिया आई नीड टू वर्क। आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, ठीक, आपको कहाँ लगता है इंप्रूवमेंट करना है। तो ये आप कमांड देंगे, उसके बाद ये बताएगा आपको, हालांकि अभी तुमने कुछ डाला नहीं है यहाँ पे, आपको कहाँ का काम करना होगा। ठीक है, ये खुद बोल लिख रहा है ग्रेट प्लीज शेयर योर आंसर्स आई विल एनालाइज देम टू सजेस्ट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपको कहाँ का इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये था आपकी लर्निंग के लिए अभी तक जो मैंने कमांड आपको करके दिखाया है इसके ऊपर। अब हम थोड़ा काम की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो काम के लिए आगे करने आते हैं। सो मैं इसको एक कमांड देने जा रहा हूँ। ये कमांड आप सभी को दिख ही रही होगी। मेरा कमांड है राइट अ कवर लेटर फॉर अ जॉब एप्लीकेशन इन द टेक इंडस्ट्री। आपको कोई जॉब एप्लीकेशन देनी है, टेक इंडस्ट्री में मेल भेजना है, ठीक, उसके लेटर लिखना है। तो ये कमांड मैं चैट जीपीटी को देने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी ये इसको लिख देगा। ठीक है, यहाँ का नाम सब कुछ आएगा, हायरिंग मैनेजर कौन 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 क्या है। अब ये यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दिख रहा है आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द जॉब। जॉब टाइटल को छोड़ दिया इसने, आप खुद इसको भर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। कंपनी नेम ये भी छोड़ दिया यहाँ पे इसने, इसका भी इस्तेमाल आप अपना खुद का डालेंगे जो भी आपको चाहिए। कहाँ से आपको मिला, ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद डाल के ये सिंपली इसी चीज को कॉपी पेस्ट करके आप मेल के थ्रू भेज देंगे। आपका काम हो गया, मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा है, मेहनत नहीं करनी पड़ी, या किसी को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा कि एक अच्छी जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए। ठीक है, ये काम इसने खुद कर दिया। अब मान लो आप काम मिल गया है आपको, आपने कोई कुछ फॉलो अप लेने होते हैं क्लाइंट वगैरह से किसी चीज को लेकर या किसी से भी, तो मैं एक कमांड और लिख रहा हूँ उसके लिए राइट अ फॉलो अप मैसेज इंक्वायरिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ अ वर्क प्रोजेक्ट। कोई आपको स्टेटस पता करना है किसी से, तो आपको ईमेल लिखनी है, उसके लिए भी एक कमांड देते हैं। तो ये भी लिख के देगा कि आपको कैसे उसको फॉलो अप लेना है। देखो से लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वांटेड टू नो फॉलो अप रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट टास्क यू आर इंक्वायरिंग अबाउट। यहाँ पे आप टास्क डालेंगे। ठीक है, आई अंडरस्टूड यू हैव बीन बिजी बट आई वुड अप्रिशिएट any updates you might have or if there is any further information need from my side to move things forward। सो ये पूरा आपका एक छोटा सा मेल चला जाएगा फॉलो अप के लिए, उसके लिए है। आगे देखते हैं और कमांड आप क्या दे सकते हैं। अब मान लो आपको कोई छुट्टी चाहिए, हर किसी को चाहिए होती है कभी ना कभी अपने काम से। तो मैं कमांड इसको लिखवा रहा हूँ राइट एन ईमेल रिक्वेस्टिंग सिक लीव एंड मेक इट नॉन एक्सक्यूजेबल। ये नहीं कि आप बॉस को ये लगे कि आप छुट्टी लेना चाहते हैं वो उसकी बस ऐसे ही बहाने मार रहे हैं। तो हम देखते हैं कैसे काम करके देता है। इसको कमांड दे रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा है इसने। I hope this message finds you well. I'm writing to inform you that I'm feeling unwell and unfortunately will need to take sick leave today. I'm unable to attend work due to my condition and I will keep you updated if I require additional time off. Please let me know। एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज अपने बॉस को या जो भी आपका सीनियर है उसको आप इस तरीके से लिख के दे सकते हैं। और ये आपके ऊपर आप कितना क्रिएटिव होके कमांड दे सकते हैं। इसको आपको कुछ और स्पेसिफिक डालना है तो आप डाल सकते हैं, या आपके पास कोई एडिशनल ऐसी चीज है जो आप पुट करना चाहते हैं वो सभी चीजें आप डाल सकते हैं। आप उसके लिए फ्री हैं करने के लिए।
एक ही असाइनमेंट के लिए है, अपॉलजी लेटर आप लिखने जाते हैं। आई डिड नॉट फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम, प्लीज राइट एन अपॉलजी लेटर फॉर द सीनियर एंड रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन। आपको एक्सटेंशन चाहिए अपने काम से, उसके लिए भी है। मैं इसको नहीं दे रहा कमांड, आप खुद करके देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा आगे, ठीक है। और ऐसी एक और कमांड यहाँ पे, इमेजिन यू आर पब्लिक रिलेशंस representative dealing with a company crisis, draft a press release that acknowledge the issues, explain the actions your company is taking and reassure the public। अब देखिए कमांड थोड़ा सा यूनिक है बहुत, कि आप पब्लिक रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव है, आप डील कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, और आप क्या करवाना चाहते हैं, वो सभी चीजें आप स्पेसिफिक दे रहे हैं, और ये उसी स्पेसिफिक तरीके से आपका टास्क पूरा करके आपको देगा। सो ये है चैट जीपीटी का कमाल, ठीक। ये आपके लिए मैं ऐसे ही एक थोड़ा सा फन वे में लिखा, भैया बनाया मैंने, ये आप सभी के लिए है। जैसे मैंने लिखा है, आई वांट टू प्रैक्टिस अ मॉक इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स असिस्टेंट, ठीक है। कुड यू प्लीज एक्ट एज द इंटरव्यूअर फॉर अ मोमेंट, कि मैं चाहता हूँ चैट जीपीटी को कि ये मेरा इंटरव्यूअर बन जाए कुछ समय के लिए, ठीक। मान लो आपको प्रैक्टिस करनी, आपको नहीं मिल रही कहीं अपॉर्चुनिटी, क्यों ना एआई को बना लिया जाए अपना इंटरव्यू कुछ समय के लिए। देखो क्या करता है, मैं कमांड दे रहा हूँ उसको ये वाली। देखो ये रही मेरी कमांड, यहाँ पे मैंने दे रखी है, ठीक है। इसने सीधे इंटरव्यू लिखा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे, लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन, कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल मी लिटिल अबाउट योर बैकग्राउंड एंड व्हाट ड्रू यू टू अप्लाई फॉर द सेल्स असिस्टेंट पोजीशन। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको लिख के दीजिए सामने, आप जो भी आपका जवाब आंसर है, ठीक है, ये उसके हिसाब से आगे रिस्पॉन्ड करेगा। और ऐसे इस तरीके से आप एक छोटे मोटे मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस आप अपने पास ही कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप एक कमांड और दे सकते हैं कि एनालाइज माय आंसर्स, ठीक, एंड सजेस्ट मी सम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। वो अपने आप आपको फीडबैक भी देगा उसके हिसाब से, और इससे क्या होगा कि आप अपने आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे आप किस एरियाज में वीक हैं, ठीक। थोड़ा ये मेरा आगे था कि एजुकेशन में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कमांड हो सकती है। जैसे मैंने कमांड रखी है, री राइट इट एंड मेक इट नॉन मैकेनिकल। मान लो मैं पहले एक कमांड दे रहा हूँ, किसी को पता है थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एनीवन, किसी को नहीं पता। मजे की बात है कि मुझे भी नहीं पता। चेंजेस। ओके ओके, थैंक यू। मुझे भी नहीं पता थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, बस दिमाग में ऐसे आया, मैं चैट जीपीटी को दे रहा हूँ करने के लिए, बताने के लिए कि क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स। देखो चैट जीपीटी ने लिखना शुरू कर दिया, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद हीट वर्क एनर्जी ट्रांसफर। मान लो मुझे नहीं समझ आया कि क्या होता है, तो लंबी चौड़ी कहानी इन्होंने लिख दी चैट जीपीटी भाई साहब ने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर अ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन 10th क्लास। आई थिंक आज सभी ने 10th क्लास तो पढ़ा ही होगा, चलो हम उसी के हिसाब से ले लेते हैं इसको, ठीक। मैंने कमांड दे दिया है इसको। आप देखो ये थोड़ा सा उसको चेंज करके, थोड़ा सिंप्लीफाई वे में करके एक 10th क्लास के बच्चे के हिसाब से मोल्ड कर रहा है, ठीक है। और आपको कहीं भी और समझना है तो आप वहां भी कमांड ले सकते हैं इससे। जैसे मैंने एक लाइन लिस्ट पहले से कॉपी करके रखी हुई है यहाँ पे, हाँ। मान लो एक ये क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उसका थोड़ा सा कुछ लाइन है न्यूज का आर्टिकल का, मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ, ठीक है, एक कमांड देके। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, एक कमांड दे रहा हूँ, समराइज इट। अब क्या कर रहा है, ये सब समराइज करके देगा, ठीक है। तो इसको इसने समराइज कर दिया, बट इसमें बीच में एक वर्ड है, दिखाता हूं मैं। मान लो COP29, पता नहीं क्या ये चीज है, आपको पता नहीं, तो हम पूछते हैं इससे क्या है ये,
ये उसके बारे में बताएगा आपको, ठीक है। तो उसने इसके बारे में बताना शुरू कर दिया आपको। तो आप हर एक छोटी से बड़ी चीज आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, ये आपको उसके आगे बताएगा, और जितना एक्सप्लेनेशन चाहते हैं आपको एक्सप्लेन कर देगा। और आपके साथ किसी टीचर की तरह इरिटेट भी नहीं होगा अगर आप बार बार क्वेश्चन पूछेंगे तो ये फायदा है चैट जीपीटी का। जैसे मैंने समराइज की कमांड तो दिलवा दी आपको, अब मैं रीराइटिंग करवा रहा हूँ। मान लो जैसे मैंने स्क्रीन बोर्ड का भी आपको दिखाया था करके, आप चाहते हो चैट जीपीटी से करवाना। अब मैं क्या कमांड दे रहा हूँ इसको, एक सेकेंड मैं कमांड कॉपी कर लेता हूँ अपनी। होता है कई बार कि अगर आप ऐसी कुछ चीजें देते हैं आपको, किसी सीनियर को या फिर अपने टीचर को, उसको पता चल जाएगा आपने चैट जीपीटी यूज किया है। तो मैं लिख रहा हूँ उसको दोबारा लिखो, उसको नॉन मैकेनिकल बनाओ, या कि नॉन एआई वर्जन दो उसका, ठीक है। एक कमांड और देते हैं, ह्यूमनाइज, मेक दिस इन ह्यूमनाइज फॉर्म में। वो अपने आप काम कर लेगा, ठीक है। इसने थोड़ा सा आपके उस तरीके से लिख के दिया, ठीक है, जैसे आप कोई आम लोग लिखते हैं, ठीक। या मैकेनिकल नहीं लगना चाहिए कि किसी असिस्टेंट या एआई के थ्रू करवाया गया इस काम को। सो ये अभी तक का चैट जीपीटी का ओवरऑल सारे प्रॉम्प्ट कमांड पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं कुछ पर्सनली आपको अपने पर्सनली चीज़ों के लिए आप भी लिख सकते हो, चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करें उसके लिए भी आप दे सकते हैं। मान लो आपको किसी को हैप्पी बर्थडे बोलना है, ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ है, किसी को बर्थडे विश करना है। वो आपका सीनियर हो सकता है, वो आपका बॉस हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपके टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो हर किसी को हर एक तरीके से बोला नहीं जा सकता। तो मान लो हम हैप्पी बर्थडे करने आते हैं किसी टीचर को, तो उसके स्पेसिफिक वे में ये लिख के देगा। ठीक, एक सिंपल सी चीज थी जो हमने चैट जीपीटी से भी करवा लिया सी, बस फन वे में। या कई बार सोचते हैं बहुत ज्यादा, या मान लो कई बार मेरे पास प्रोफाइल्स आती हैं बड़ी बड़ी, कई बार सीनियर्स जैसे हम रिसोर्स पर्सन को इनवाइट करते हैं इस सेशन में, तो बड़ी होती है। तो मैं कमांड अक्सर मेरा ये कमांड रहता है इसको करने के लिए कि मेक अ शॉर्ट प्रोफाइल बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन, एंड नेक्स्ट मेरा कमांड ये होता है कीप दिस प्रोफाइल शॉर्ट इन 100 वर्ड्स लिमिट। तो वो उसको उस लिमिट के अंदर ही करके बना के देगा इस प्रोफाइल को, ठीक है। या आप भी कुछ लेके देना चाहते हैं, आप मान लो कोई कमांड दे दो आपका कुछ, मान लो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस कर रखा है, और आपको कमांड दो कि इसका सीवी बनाओ, उसका सीवी बना के देगा। लेकिन उस सीवी को आपको अपने पर्सनलाइज वे में अलग से वर्ड में ड्राफ्ट करना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है करने के लिए। जैसे मैंने आज अपने पर्सनली यूज करने के लिए मैंने ऐसी बस आपको दिखाने के लिए लिख दिया है कि आई एम गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन हाउ टू यूज चैटजीपीटी एंड ऑनलाइन टूल्स फॉर वर्क, राइट सम इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स फॉर मी। यानी कि मेरा एक सेशन है आज चैटजीपीटी का आप सभी के साथ, जो कि आप ले ही रहे हैं ऑब्वियसली। और मैंने बस लिख दिया सम, मेरे लिए कुछ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स लिख दो, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कुछ, ठीक है, कि मुझे इस सेशन को कैसे शुरुआत में क्या बोलना है। तो ये वो लिख के देगा, हालांकि मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। या मैं ऐसे लिख रहा हूँ, गिव मी सम टिप्स फॉर वेकिंग अप अर्ली इन विंटर्स। बड़ी नींद आती है आप सभी को विंटर्स में, तो कुछ टिप्स भी आपको प्रैक्टिकल वे में देगा लिख के कि आप क्या क्या कर सकते हो सुबह जल्दी उठने के लिए। मैं बस लिख दे रहा हूँ उसको यहाँ पे, ये सारे पॉइंट लिख के देगा क्या क्या आपको करना है, जिससे आपका जो स्लीपिंग, सॉरी उठने का जो समय है वो सही हो सके, ठीक है। सारी टिप्स आपके साथ शेयर करेगा। एक मेरी कमांड थी जो आप सबको दिखाना चाहता था। मान लो एक, आप सभी ने बुक का नाम सुना होगा एटॉमिक हैबिट्स, नहीं सुना एक अच्छी बुक है अगर आपको अपने हैबिट्स को अच्छा करना है तो, ठीक। मैं क्या लिख रहा हूँ, एक कमांड दे रहा हूँ उसको, राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ एटॉमिक हैबिट्स
book and suggest some useful tips. ठीक, देखो उसने खुद बता दिया कि ये बुक किसकी है, जेम्स क्लियर की बुक है ये, एटॉमिक हैबिट्स, ऑथर इनकी है। तो उसका एक समरी बनाया इसने छोटा सा, कि आप उसके आगे बताया कि आप क्या क्या सीख सकते हैं इस बुक से, ठीक है, और क्या क्या यूजफुल टिप्स हैं आप सभी के लिए। ठीक, आप जितना क्रिएटिव वे में आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल जो चीज आपके सामने बताई गई वो थी चैट जीपीटी की। पर आप सभी के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल आपको करना है, लेकिन इसकी आपको आदत नहीं डालनी। और आदत इसलिए नहीं डालनी क्योंकि ये थोड़ा आपको जैसे स्मार्टफोन है या ये है, ये ज्यादा स्मार्ट आपसे रहेगा, और एक ह्यूमन से ब्रेन के से ज्यादा कोई स्मार्ट मेरे हिसाब से नहीं है। या आप जितने क्रिएटिव आप हो सकते हैं, आप उसकी कोई लिमिट नहीं है मेरे हिसाब से अपनी कल्पना में। सो इसको करने के लिए आप पहले कोशिश कीजिए कि आप अपना कंटेंट लिखें, फिर चैट जीपीटी को दे करने के लिए, एंड देन जो उसके बाद आप उस पर काम करेंगे, जो अपनी तरीके से आप चीजें डालेंगे, वो ज्यादा यूजफुल होगा आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। क्योंकि आपको डिपेंडेंट नहीं होना है इस पे, ठीक है। आपको कोशिश करनी है वो ईमेल आप खुद लिख पाए, ठीक है। ये आपको नहीं आ रहा है, तब चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक। और उसके बाद आपको लर्निंग करनी है, कोशिश करनी है कि आप कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार चीजें प्रोफेशनल लेवल पे सेटअप होती हैं, करनी होती है। तो उसके लिए मैं भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कई बार करता हूँ। तो इस तरीके से सजेस्टेबल है, इसको एडिक्टिव ना बनाएं, यानी कि आप अपंग ना बने, ठीक। मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। देखते हैं हम कहाँ थे। स्प्रिंग बूट हो गया, आई लव पीडीएफ पे आते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ की वेबसाइट है, सिंपली मैं आपको शेयर करके बता देता हूँ सीधे। हम दोबारा चलते हैं अपने क्रोम पे, ठीक। ये रही वेबसाइट, आपको बस यहाँ लिखना है आई लव पीडीएफ। ये पीडीएफ की वेबसाइट पे पहले भी जो भी आएगा क्लिक कर देना आपको। ये अलग टूल्स है पीडीएफ के, आपको कुछ पीडीएफ मर्ज करने हैं, दो चीजें हैं आपको, एक करनी है डिवाइड करना है, उसके लिए है कंप्रेस करना है, मान लो साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, ईमेल जो कि 25 MB आई गेस अलाउ करता है, ठीक है, पीडीएफ सेंड करने के लिए। उसको थोड़ा चाहते हो कम साइज कर दो उसका, ठीक है, ताकि आप कंटेंट भेज सको किसी को जो भेजना हो, तो उसके लिए है। या आपको पीडीएफ से वर्ड बनानी है, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये अलग अलग टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं पीडीएफ के आपको यूज करने के लिए, ठीक है। तो आप इस साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एडिशनली मैं जो बोनस आपको साथ टिप्स शेयर करने आता था, वो ये था कि एक सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, जो कि अवेलेबल है आपका प्ले स्टोर पे, जिसका इस्तेमाल मैं करता हूँ। एक सेकेंड। और ये सॉफ्टवेयर है, ये डॉग स्कैनर। आप कोशिश करिए, स्कैन करने के लिए काफ़ी अच्छा टूल है ये। आप जिसको अपने डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, अपने एंड्रॉइड फ़ोन में आप डाल सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेस्ट कीजिए क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं। और जैसे इमेज के लिए आप कई बार आपको फॉर्म भरना होता है, तो कई लोग पूछते हैं सर इमेज कैसे कंप्रेस वगैरह करें। तो उसके लिए प्ले स्टोर पे एक ऐप है आपका, यह है कंप्रेस इमेज साइज एंड केबी एंड एमबी, इसके हिसाब से कर सकते हैं। ये सिंपली आपको बस वहाँ पे अपना जब ऐप को ओपन करेंगे, सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, फोटो सेलेक्ट कीजिए, साइज डालिए किस साइज में फोटो आप चाहते हैं, तो वो आपको ये करके दे देगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से आपको करना है। जीमेल का बताया जैसा कि एक ऑलरेडी कवर है, तो उस पर मैं आज बात नहीं करूंगा। ओपन ऐप के बारे में आपको जैसे बताया, सेम ऐसा ही आपका जेमिनाई है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। सो आगे मैं कुछ आपको बोनस चीजें शेयर करना चाहता हूँ। आपको कुछ यूट्यूब चैनल सर्च करना चाहता हूँ जो आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट पे हेल्प करेंगे। ये इंग्लिश विथ लूसी करके है, चैनल है। ये इंग्लिश में ही पढ़ाती हैं क्योंकि ये लंदन से हैं, ठीक है। सो अगर आपको अच्छी आदत डालनी है कि एक इंस्ट्रक्टर की बात को कैसे सुने,
और इसको इंग्लिश के थ्रू सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हिंदी इंग्लिश करेंगे तो वो माइंड में सर से सेटअप हो नहीं पाएगा। आप सभी हिंदी बोल के या सुन के इस तरह से सीखें तो इंग्लिश भी ऐसे सीखिए, कोशिश करिए, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसी एक लर्न इंग्लिश करके फ्री चैनल है, ये भी यूट्यूब पे है, ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं, लेट्स टॉक नाम से। एक लर्निस करके है, अगर आपको थोड़ा बिगिनर है, आप हिंदी के थ्रू सीखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल है, ठीक। ऐसी एक लर्न इंग्लिश विद टीवी सीरीज है। मान लो किसी को मूवीज देखना पसंद है या सीरीज, उसके थ्रू आप कुछ इंग्लिश देखना सीखना चाहते हैं तो उसमें काफी वीडियोस है जो आपको मूवीज के कुछ क्लिप के थ्रू या सॉन्ग्स के थ्रू भी इंग्लिश सिखाते हैं इस चैनल पे। ये सभी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैं शेयर कर दूंगा आपको पीडीएफ इसका। ऐसी टेडेस टॉक नाम से एक चैनल है, आई थिंक काफी प्रोफेशनल या बड़े लोग इसको देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। इसमें काफी अच्छे वीडियोस या आप सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, आप उनके वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश अच्छी सुनने की आदत डालनी है, समझ अच्छे वर्ड्स यूज करना कैसे क्या होता है, सेमिनार्स में कैसे बोला जाता है, तो उसके लिए यह है। ऐसे इंग्लिश स्पीचेस करके है, ये सबटाइटल के साथ उन स्पीचेस को दिखाता है जो स्पीचेस होती हैं, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझने में हेल्प मिल सकती है उन वीडियोस को देखने में। देन ब्रिटिश काउंसिल का एक लर्न इंग्लिश नाम से चैनल है, जिसे आप यूज कर सकते हैं अपने इंग्लिश को और बूस्ट करने के लिए। यहाँ पे सारी ग्रामर्स या फिर कैसी चीज़ों को यूज करते हैं वो सिखाया जाता है। ऐसी बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, बीबीसी का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, तो ये इंग्लिश का भी इनका एक चैनल है सिखाने का, तो आप इसको भी देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन मैं आपको साथ शेयर करना चाहता था, वो ये था कि जो हमारे चैनल्स हैं या हमारे पेजेस है अलग प्लेटफॉर्म्स पे हैं, वो यूट्यूब पे है, वो इंस्टाग्राम पे है, वो फेसबुक पे है, तो उसके ये हैंडल्स हैं, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जाके फॉलो करें, और जो भी सक्षम रोजगार सोसाइटी जो भी आपकी एक्टिविटीज करने वाली होगी या करेगी, उसकी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इस चैनल यूट्यूब पे जाके प्लीज सक्षम रोजगार सोसाइटी को सब्सक्राइब करें, आपको आगे जो भी वीडियोस बनेंगी आपको मिल जाएंगी हमेशा वहाँ पे। और मान लो ये सेशन आप दोबारा देखना चाहते हैं तो ये भी वहाँ पे डाल दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं। सो ये सारा आज मेरी तरफ से था, आई थिंक क्लास में थोड़ी जल्दी वाइंड अप कर दी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सो थैंक यू। ओवर टू यू संजू। Abhishek, if somebody has any question, please ask. अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेगा। यस यस प्लीज पूछिए, किसी को पूछना हो तो। सर यस यस सर आप मुझे वो पीडीएफ के बारे में बता रहे थे, एक बार फिर से बता सकते हैं? मुझे समझ नहीं आया था। क्या स्पेसिफिक समझ नहीं है आपको, बताओ। सर आप स्लाइसेस कह रहे थे ना, आप छोटे और बड़े कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये इस पीडीएफ वेबसाइट की साइट है, ठीक है। छोटे बड़े का नहीं होता, साइज होती है एमबी में जो होती है, 1 MB 2 MB। मान लो कोई पीडीएफ है जो कि 30-40 MB की, इसको कम करना है, 10-20 MB की बनानी है, तो यहाँ पे सिंपली कंप्रेस करके क्लिक करेंगे, कंप्रेस पे यहाँ पे आ जाएंगे और अपने पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करेंगे आप, जहाँ जो भी आप करना चाहते हैं। मान लो मैं इसे करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसे ये यहाँ पे कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और ये से कंप्रेस करके दे देगा, ठीक है। फिर आपको इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, सिंपल, समझ आ गया आपको। सर अभिषेक, आप थोड़ा ये भी बताओ कि पीडीएफ कंप्रेस क्यों करनी पड़ती है, मतलब जरूरत क्यों हाँ मैं पड़ती है उसकी? वो कह रहा था, मैं बता देता हूँ। क्या नाम है आपका, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर पूजा। पूजा, हाँ पूजा जी, देखो जब हम मान लो ईमेल किसी को भेजते हैं, ठीक है, तो ईमेल की एक लिमिटेड स्टोरेज है, उस साइज के फाइल को ही वो भेज सकता है। वो 25 MB की है, ठीक है, जो उसका लिमिट है। मान लो जो आपके पास आपने पीडीएफ बनाई है उसका साइज है 30 MB या 40 MB, आपसे कम करना है तो उसका साइज, तो ये उसके लिए है, ये टूल है। तो उसे हम कंप्रेस करते हैं, उसका साइज कम करते हैं, तब जाके भेजते हैं, तब वो 20 MB का बन जाएगा, 15 MB का बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। Sir, GTP is available on Play Store. हाँ यस, इट इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। Good evening, sir. एंड अपनी आइडिया बना लोगे तो आपको यूज करने में और हेल्पफुल वो रहेगा। आप देख सकते हो क्या क्या आपने किए हैं काम पहले भी। यस मनीष।
सर जैसे कि आपने अपने सेशन में मैंने दो चीजों को मोस्टली फोकस किया है, क्योंकि ये दोनों चीज मैं डेली लाइफ में करता हूँ। जैसे कि ऑटोमिक हैबिट की आपने बात की थी, बुक की एक, यस तो यस यस ये बुक मैं अभी अराउंड 2 मंथ्स बिफोर मेरे को मिला था, तो मैंने इसको पढ़ के खत्म किया था, 250 पेजेस। एंड आफ्टर रीडिंग मैंने अपने में बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें कोई दूसरा बताता है तो समझ नहीं आते, बट जब हम खुद प्रैक्टिस करें तो उसे अच्छी तरह से कर पाते हैं। और सर बिल्कुल। चैट की बात की जाए तो चैट चैट जीपीटी में यूज करता हूँ, बिकॉज लाइक कभी कभी कुछ असाइनमेंट्स हो जाते हैं तो मुझे पता नहीं रहता है कहाँ से क्या करना है, तो उस पर ढूंढ के फिर अपने फोन से मैं टाइप करता हूँ। प्लस टॉपिक्स हो गए या प्रेजेंटेशंस हो गए तो उसके लिए बस सर आजकल इवन हमारे जो व्हाट्सएप वाले हैं वहां पे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी एक ऑप्शन आ गया है कि माई असिस्टेंट करके हेल्प है, तो वहाँ ऐसा एआई है, तो वहां से भी हम कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि लाइक अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो स्टोरेज से, तो अगर हम चाहें कि अगर हमें ऐप डाउनलोड नहीं करनी है तो हम इवन उससे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चाहे तो। टेलीग्राम अगर यूज करें तो लॉट्स ऑफ एआई बोट है जहाँ पे अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं सर। That's हाँ all. बिल्कुल, आप सही हो। एआई हर जहाँ पे है, फेसबुक पे भी, आपके व्हाट्सएप पे भी है, मेट एआई नाम से आ रखा है। आप Yes, वहां से sir. यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी जो कि फर्स्ट था इस रिवोल्यूशन में आगे बढ़ाने की चीज को, तो चैट जीपीटी ज्यादा पॉपुलर हुआ और लोग उसे इस तरफ से यूज करते हैं। सर अगर व्हाट्सएप से करना चाहे तो आप दिखा सकते हैं कैसे होगा वो? व्हाट्सएप से करके दिखाना है आपको? हाँ एक जी। सेकंड, लेट जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक सेकंड दीजिए, मैं व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप का ऐप है, मतलब मेरे लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे मेरे, ठीक। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक मेटा, ये रहा आपका एआई मेटा नाम से, ठीक है। ये देखो मैंने पहले कमांड दे रखी है, ठीक है। मान लो मैं ऐसे कमांड देता हूँ, शेयर टॉप 10 न्यूज ऑफ टुडे। सो देखो ये अपने आप टॉप 10 न्यूज भी दे रहा है आपको लिख के, ठीक है। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। आई होप आप सभी ने सीख लिया होगा व्हाट्सएप पे कैसे आप इसको यूज करना है। एनीवन एल्स? एक पासपोर्ट फोटो को किस तरह से कंप्रेस करते हैं फॉर अपलोडिंग ऑन ए ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे सर मैंने इसके ड्राइविंग लिए लाइसेंस के काफी लिए बनाना है? बीच में, ये सही बता रहा हूँ मैं सर, बीच में ही सजेस्ट किया था ऐप कंप्रेस साइज नाम से। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। ये प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, ये ऐप स्टोर पे भी आपको शायद मिल जाए, कि मैंने अभी तो देखा नहीं है तो कुछ कह नहीं सकता। मैं दिखा देता हूँ दोबारा करके। ये रहा सर ये ऐप, ये इस तरह का इसका आइकन होगा जो आप देख पा रहे हैं, और इसका नाम है कंप्रेस इमेज साइज इन केबी एंड एमबी। ये उसे कंप्रेस कर देगा सर। मोबोसो ऐप, यस सर। मोबसो ऐप लिखा हुआ है इसमें। कहाँ? मुआवजा ऐप सर, इनका ये कंपनी का नाम है जो ये बनाता है, इसका नाम यही है, कंप्रेस इमेज साइज इन केबी एंड एमबी। इसका नाम कुछ और था, इसका पता नहीं क्यों चेंज कर दिया इसका नाम, तो अभी इसका नाम यही है। तो इससे आप कंप्रेस कर सकते हैं। आपको बस लिखना है प्ले स्टोर पे आके कंप्रेस इमेज साइज इन केबी एंड एमबी। ये जहां लोगो दिखेगा सर, ये डाउन कर लेना आपको बस, क्योंकि मुआवजा बहुत ऐप्स के सारी थ्रू। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी पड़ती हैं, चाहे स्कॉलरशिप की हो, चाहे यस सर, उसमें हेल्पफुल है बिल्कुल ये। जॉब के लिए भरनी हो, तो फोटो आपको अपलोड करनी है, तो कई एप्लीकेशन में लिमिट होती है कि भाई 20 KB से बड़ी फोटो नहीं होनी चाहिए। यस सर। Abhishek, तो can I ask यस some? मैम, यस श्योर मैम। Abhishek, मिस्टर प्रदीप कुमार मेहरोत्रा जी ने एक क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें आपके मैसेज में देखना, हाउ डज चैट जीपीटी वर्क एंड हाउ इट प्रोवाइड्स द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। ये अगर हम चैट जीपीटी से ही पूछते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है मैम, राइट? श्योर, करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट। जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कहाँ गया? यस।
मैम कमांड बोलिए, मैं चाहूंगा आप कमांड बोले, मैं लिख देता हूँ। हाउ चैट जीपीटी वर्क्स How it एंड मैम provides the desired information. एंड हाउ How it it provides provides the desired information. information। इसने आंसर दे दिया मैम। ChatGPT is an advanced language model developed by OpenAI. It is based on deep learning architecture called a transformer that enables to understand and generate human-like text. Here is a breakdown of it works. Training on messy data, understanding input, generating a response, refining response. ये लंबा थोड़ा हम पढ़ेंगे, इसको टाइम भी दिया जाएगा, तो इसने दी है, बताया कि किस तरह से हम काम करते हैं। हाँ, कोई जैसे कई क्वेरी तो होएगी, हमें तो होएगा ना कि हम जाने कि ये सब कैसे इतने फास्ट हो जाता है, तो उसके लिए मैंने मतलब आई जस्ट Sure, वांटेड टू थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, इसमें काफी अच्छे से बताया कि ChatGPT काम कैसे करता है, ये इसका क्या हिसाब किताब का तरीका है। और अगर आप, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग लोगों के लिए ChatGPT कैसे इस्तेमाल करते हैं, मार्केटिंग के लिए, बिजनेस के लिए, कंटेंट के लिए, राइटिंग के लिए, उन सभी के लिए आपको अलग कमांड्स का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप खुद एक्सप्लोर कीजिए और सीखिए आप कितना अच्छा आप अपने काम को कर सकते हैं इसका यूज करके। सो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था आप सभी के लिए। थैंक यू। एनिमल्स एज कोई और कुछ पूछना चाहेगा या हम आगे बढ़े फिर? आई थिंक संजय यू कैन प्रोसीड फर्दर। Okay, Abhishek. Thank you so much, Abhishek, for taking such a wonderful session. I hope so. आप सभी ने आज ऑनलाइन टूल्स का यूज करना सीखा होगा। ऑनलाइन टूल्स का यूज करके आप अपने काम को एफिशिएंटली और टाइमली कर सकेंगे। Now I am requesting to each of you to please turn your camera so that we can take a picture. Abhishek, could you please take a screenshot, please? श्योर 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 श्योर। यस संजू, डन। Now संजू जी आप आगे बढ़ सकते हैं। यस। yes. Now I'm requesting to every student to kindly drop your attendance in chat box with your name with last 4 digits of your mobile number. Now I'm requesting to today's leading person, Miss Shobha Basheen ma'am, for potential remarks. Over to you, ma'am. एक सेकेंड संजू, Yes, ma'am. 1 minute शोभा, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग। कल का सेशन मुझे स्टूडेंट्स के लिए बताना था कि मैं ये कहना चाहती हूँ, टुडे सेशन वाज वेरी गुड, सारे सेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, बट टू माय असेसमेंट टुमारो सेशन इज गोइंग टू बी दी बेस्ट। और मैं कारण इसलिए बताना चाहती हूँ कि एक जो सक्षम रोजगार सोसाइटी और सक्षम भारती की एक एक वो एक प्रोसेस हमारा चल रहा है कि हमारे जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप्स लिए, जो जिनको यहाँ से मेंटरशिप मिली, जिनको यहाँ से सपोर्ट मिली, वो आज वो सब आपके सामने रिसोर्स पर्सन के रूप में ज्वाइन किया हुआ है। और वैसी ही कड़ी आगे बढ़ाते हुए हमारे जो AICB के साथ, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के साथ हम ब्लाइंड स्कॉलरशिप और मेंटरशिप का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसी में कल का जो हमारा सेशन, कल की जो हमारी रिसोर्स पर्सन है, वो उसी में से निकली हुई रबिया फिरोज है। और रबिया फिरोज किस तरह से रिसोर्स पर्सन बनती है कि जो हमारा मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है, तो जब हमने उनसे बातचीत करी तो हमें लगा कि रबिया खुद एक बहुत बढ़िया क्लास दे सकती हैं। तो कल इसलिए फिर से मेरी रिक्वेस्ट, एक स्पेशल रिक्वेस्ट, वो नॉट ओनली दैट रबिया वुड बी ए रिसोर्स पर्सन एंड शी विल बी शेयरिंग हर लाइफ एक्सपीरियंस कि उन्होंने जीवन में कैसे पढ़ा लिखा, कैसे इतनी बड़ी अंग्रेजी सीखी, पर एक एनकरेजमेंट भी है जिसको इंक्लूसिविटी कहते हैं, कि हम डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी ना मान के उसको हम समाज का हिस्सा माने, उसको अपने साथ जोड़े। तो हम सबके ऊपर वो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल के हम सेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करें, अपने दोस्तों में बांटें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हम चाहें कि कल के हमारे सेशन का जो आंकड़ा है वो 100 को टच करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड सॉरी शोभा फॉर इंटरप्शन, यू मे कंटिन्यू। Thank you, Jyotika. We are also looking forward to attending the session by Rabia Firoz.
Good evening, everyone. As you all know that we are in our 4th week of a month-long training session on communication and English speaking. And today is the 3rd day. And today's session was a wonderful session taken up by our dear Sir Abhishek. And it is it was based on how to use online tools. फिर से एक बारी हम याद करते हैं कि अभिषेक सर ने कौन कौन से टूल्स इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिकली दिखा के स्क्रीन शेयर करके हमको समझाए थे। जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अगर टाइप करते हैं तो वो उतनी ही जल्दी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकता है, या फिर उसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं और वो इंग्लिश में भी वाइस वर्सा। स्पिन बोट, उन्होंने बहुत अच्छे से स्पिन बोट समझाया। आई लव पीडीएफ को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम कंप्रेस कर सकते हैं अपने पीडीएफ को, ताकि हम उसको अपलोड कर सकें, क्योंकि एक लिमिट होती है जिसको हम अपलोड कर सकते हैं और हमारे पीडीएफ काफ़ी बड़े होते हैं, तो हम उसको उनके साइज़ को हम कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एट अ लेंथ उन्होंने एक चैट जीपीटी हमको समझाया, और उस चैट जीपीटी को स्क्रीन शेयर करके एक-एक सेंटेंस को प्रॉम्प्ट्स उनके पास रेडी थे, इतना स्ट्रक्चर्ड था कि प्रॉम्प्ट्स सारे रेडी थे और वो साथ-साथ करते गए और साथ-साथ हमको दिखाते गए। जैसे कि अगर हम इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें ग्रामेटिकली उसको हम कैसे करेक्ट कर सकें, वो भी। कैसे हम चैट जीपीटी को वर्क प्लेस में, कैसे हम एजुकेशन में, कैसे हम कोई टॉपिक में अगर स्टकअप हो जाते हैं तो हम उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते, किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर्सनली अगर हम चाहें तो हम कैसे किसी को भी हम विश करना चाहते हैं और हमारी लैंग्वेज इतना कमांड नहीं है, तो हम उसको चाहते हैं कि अच्छे से मैसेज हम दे सकें उसको, तो हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम अपना कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं और हमारा चैट जीपीटी हमको रेडी फटाफट करके दे देगा और हम इसको शेयर कर सकते हैं। सिमिलरली उन्होंने ये भी बताया कि कभी-कभी प्रोफाइल्स, रिसोर्स पर्सन के प्रोफाइल अगर इतने बड़े होते हैं और उनको 100 वर्ड्स में चाहिए, तो हम कैसे चैट जीपीटी यूज़ करके उसको शॉर्ट कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम चाहते हैं कि अर्ली विंटर्स में हमको कोई टिप्स दिया जाए, तो हम चैट जीपीटी से, अपने प्यारे चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थीं जो उन्होंने बताया, और एंड में उन्होंने इतनी अच्छे से शेयर की जो लिंक्स थी, इंग्लिश को अगर हम अपने इंग्लिश को और अच्छे से वो कर सकें, अच्छे से समझा सकें, अच्छे से समझ सकें, तो हम कौन-कौन से ऐसे लिंक्स हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल हैं यूट्यूब में, उनको यूज़ कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को अच्छे से बढ़िया बना सकते हैं। इन सब के साथ साथ में हमें ये भी बताया कि चैट जीपीटी करता कैसे है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि चैट जीपीटी किस तरह से, क्या चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करता है और हमारे प्रॉम्प्ट्स इतने फटाफट आ जाते हैं और हम रेडी हो जाते हैं विद ऑल द मैटर विच वी वांट टू शेयर। इसके साथ ही किसी स्टूडेंट की क्वेरी थी कि हम व्हाट्सएप में किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी एआई का टूल है जिसमें हम इस तरह की चीज़ें, कुछ भी वर्ड हम डाल सकते हैं, कुछ भी प्रॉम्प्ट हम डाल सकते हैं और उसका फटाफट आंसर आ सकता है। इट वाज़ अ वंडरफुल सेशन अभिषेक, और हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन इतनी इलैबोरेट तरीके से नहीं यूज़ करते जितना आपने समझाया। Thank you so much, and I want everyone to participate in this and practically use it at home, and then come up the next day with more queries and more uh, prompt sentences which we can write on ChatGPT and come up with their answers. Thank you so much, Abhishek. Thank you, Jyotika ji. Thank you, participants, for Thank you, giving ma'am. the session. Over to you, Abhishek. Thank you, ma'am, for valuable remarks. Now I am invited to Kanish Fatima for vote of thanks. Fatima, over to you. Thank you so much, Sanju, for giving me this opportunity. Good evening, everyone. Dear friends, I am Kanish Fatma on behalf of Saksham Rozgar Society. Take the privilege of extending a vote of thanks. To begin with, I would like to express my gratitude to our host, Sanju Saini, for managing the session well. I also extend my thanks to Advocate Abhishek Shah, sir, for delivering us such a wonderful class, engaging the students and providing them with valuable tips
for using ChatGPT and online tools. A special thank you goes out all of you, my dear students, for actively participating in the class. I hope to see each of you in every class with the same enthusiasm. Last but not least, I would like to acknowledge the leading person Sobha Basin ma'am, who despite her very busy schedule consistently attends the class and is unwavering in her determination to enhance its quality. Wishing you all a very good night. Thank you. Thank you, Kanish Fatma. Good night, everyone, and see you in